Hello students, the most awaited video is here. Many students have requested that, ma'am, you have made such a wonderful reference guide for us for MDCS and also for other elective papers like labor laws, banking and IPR. So many students were demanding that, ma'am, please, if you can make some video or give some sort of guideline to us to prepare for the CS professional level, particularly the open book papers, and not only the reference guide, but also you were demanding, ma'am, if you could come up with some PDF or some document in which you can guide us that how we are supposed to write the answers in the real examination. So I have made one PDF for you in which I'll be showing you in real time that how you are supposed to find the keywords or how you are supposed to find the relevant case studies in the 3 hours time, which is made available to you by ICSI. Now, before moving further, this is my suggestion, this is my request, this is my order. Consider whatever as per your convenience. Always remember, ICSI is not expecting a simple cut, copy, paste answer from you. Rather, you are considered as a professional when you are in your CS professional level. Then you need to think like a company secretary. You need to think like a professional, that how a company secretary would have written the answer if he would have faced any particular scenario or case law, right? आपके पास जब कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा तो वो सिर्फ ऐसे केसेस के साथ आएगा क्या, which are there in your study material or what? No. Whenever you are exposed, whenever you are you are facing any client, you can be exposed or you can get any case law from any domain, right? So you need to think very objectively, you need to think like a professional, and this is the same thing which is expected by ICSI when they are talking about particularly the open book papers, right? It includes multidisciplinary case studies, open book paper, as well as other elective paper like labor law, IPR and so on and so forth. So what I have done, I have given it a much thought कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या मैं ऐसा आप लोगों के सामने लेके आऊं which can actually guide you in your journey of clearing CS professional, right? So first of all, मेरा सबको बहुत सारा थैंक यू जिन भी स्टूडेंट्स ने MDCS और अदर इलेक्टिव पेपर के रेफरेंस गाइड को इतना प्यार दिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट समझ लो, जिसमें जो आपको एक्चुअली हेल्प करने वाला है कि किस तरह से आप इजीली और सक्सेसफुली आंसर ढूंढ सकते हैं, आंसर्स के बीच में कीवर्ड्स को ढूंढते हुए नेविगेट कर सकते हैं, सो दैट यू क्लियर इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट, राइट? सो स्टार्टिंग विद द फ्लो ऑफ द दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिफोर मूविंग अहेड, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये जो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ लिया है, ये सेम क्वेश्चन है जो लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था, राइट? और ये पर्टिकुलर PDF मैंने कुछ ICSI के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उनसे कुछ पोर्शन उठाए हैं आंसर्स के, कुछ पोर्शंस आई हैव टेकन फ्रॉम ICSI स्टडी मटेरियल, एंड देयर आर फ्यू लाइन्स which I have added from my point of view, कि कैसे एक प्रोफेशनल सोचता, क्या उस प्रोफेशनल ने अपने आंसर्स में या अपने सजेशन में क्या चीजें इंक्लूड की होती थी, कैसा उसने सोचा होता था. ये व्यू पॉइंट मैंने आपके सामने क्रक्स्ड वर्जन में लाने की कोशिश की है, राइट? तो चलते हैं. तो ये केस स्टडी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि इन 2017 अ चेन ऑफ कॉफी रिटेल closed a decade of astounding financial performance. Sales had increased from $700 million to $8 billion and net profits from $40 million to $600 million.
In 2017, the company was earning a return on invested capital of 25%, which was impressive by any measure. And the company was forecasted to continue growing earnings and maintain high profits through to the end of the decade. How did this come about? अब this is the question which is posed in front of you. ये केस स्टडी का पार्ट है, पर this is indeed a question जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें इस पूरे केस स्टडी में अब ढूंढना क्या है। इस एक क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि कैसे एक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को बढ़ाया, अपने जो फिगर्स हैं, जो प्रॉफिट फिगर्स हैं, जो रेवेन्यू फिगर्स हैं, उन्हें कैसे उसने बढ़ाया, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या एक कंपनी स्ट्रैटेजीज अपनाती है, कैसे वो एक सक्सेसफुल बिजनेस में जाती है, ऐसा कुछ पूछने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अभी मैं भी जब ये डिस्कशन कर रही हूँ तो आई एम नॉट थिंकिंग लाइक अ प्रोफेशनल। मैं CS अदिति पंत नहीं हूँ। मैं अभी सोचती हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट क्या सोचती। ठीक है, तो मैं उसी तरह से पूरे वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही नेविगेट करूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूं। कैसे मैं अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड उसमें ब्लेंड करूंगी, ये अब आपको उसके साथ साथ समझ में आएगा इस वीडियो में। ठीक है, 30 years ago, the company was a single store in its local market selling premium roasted coffee. Today, it is a global roaster and retailer of coffee with more than 12,000 retail stores. अभी हमें से समझ में आया कि पहले ये कंपनी एक नॉर्मल छोटा सा एक स्टोर चलाती थी और उसने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा फैला लिया है, बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया है। Some 3,000 of which are to be found in 40 countries outside its home country. अपने होम कंट्री के अलावा भी दूसरे कंट्रीज में बिजनेसेस उसने एक्सपैंड किए हैं। The company set out on its current course in the 1980s when the company's director of marketing, Srinivas Santaraman, came back from a trip to Italy enchanted with the Italian coffee house experience. अब ये कुछ ऐसा लगा जिससे ये समझ में आया कि मिस्टर श्रीनिवास ने इटली में जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के साथ जब वो लौटे तो उन्हें क्या समझ में आया कि देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है जो मिसिंग है उनके रिटेल में या उनकी कंपनी में, राइट? जो शायद वो यहाँ पे लोगों को वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि एक कॉफी हाउस होता तो कैसा होता। ये हमको नॉर्मली अभी समझ में आया। ठीक, श्रीनिवास Santaraman, who later became CEO, persuaded the company's owner to experiment with the coffee house format and the coffee house experience was born. Now see, हम सही जा रहे थे। हमको ये समझ में आया कि उनने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो वहां लिया उसको अपनी होम कंट्री, अपनी रीजन में उसे डालने की, डेवलप करने की कोशिश करी, राइट? Santaraman's basic insight was that people lacked a third place between home and work. लोग होम एंड वर्क के बीच में वो एक चीज को मिस करते हैं जहां पे बैठ के वो चिल कर सकें, दोस्तों से मिल सकें, अपना पर्सनल टाइम निकाल सकें, एंड हैव अ सेंस ऑफ गैदरिंग, जहां पे उन्हें गैदरिंग का भी सेंस मिले और अच्छा बेवरेज और अच्छा फूड भी मिले। ठीक, द बिजनेस मॉडल दैट इवॉल्व्ड आउट ऑफ दिस वाज टू सेल कंपनीज ओन प्रीमियम रोस्टेड कॉफी along with freshly brewed espresso style coffee beverages, a variety of pastries. अभी देखिए, जब मैं आपके साथ इसको पढ़ रही हूँ, अनडाउटेडली मैंने इसको पहले पढ़ा है, पर जब हम इसके साथ नेविगेट कर रहे हैं और जब मैंने ऐसा कहा कि कॉफी के साथ और भी वो फूड सर्व करेंगे, तो आपके दिमाग में भी आया होगा, हाँ आपको भी ऐसा ही लगता है, यू ऑल्सो फील द सेम वे। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अ कॉफी शॉप, हम क्या सिर्फ कॉफी ऑर्डर करते हैं? नहीं, वी ऑर्डर दी साइड मेन्यूज एज वेल। जैसे हम ये मंगा लेते हैं, पिज्जाज मंगा लेते हैं, हम टोस्ट मंगा लेते हैं, हम रोस्टेड ब्रेड मंगा लेते हैं, ऐसा सब कुछ हम ऑर्डर करते हैं, हम पेस्ट्रीज मंगा लेते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये साइड मेनू के ऑर्डर्स कहलाते हैं, राइट? जैसे कॉफी एक्सेसरीज हैं, टीज हैं, अदर प्रोडक्ट्स इन अ कॉफी हाउस सेटिंग। The company devoted and continues to devote considerable attention to the design of its stores so as to create a relaxed, informal and comfortable atmosphere. अब कॉफी शॉप को अगर हम एक इंडिपेंडेंट थर्ड व्यू पॉइंट से देखें तो हम क्या सोचेंगे? आप एज अ कंज्यूमर क्या सोचते हैं कि यार एक ऐसी जगह जहां पे आप आराम से बैठे हैं, आपको जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं वो आपको बेस्ट जो उस जगह पे मिलता है, जिस चीज के लिए वो जगह फेमस है, वो चीज आपको क्या मिले? बेस्ट
तरीके से मिले, राइट? यही आप सोचते हैं। अगर हम कॉफी शॉप जा रहे हैं, अगर हम कॉफी के लिए ही किसी कैफे में जा रहे हैं, तो आप वहां पे क्या उम्मीद करेंगे? आप पाइनएप्पल शेक से ज्यादा आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं? कॉफी को। अब कॉफी की अलग अलग वेराइटीज हो सकती हैं और उसके साइड मेन्यूज हो सकते हैं, ठीक है? यही सेम चीज मिस्टर श्रीनिवास के दिमाग में भी आई। अंडरलाइंग दिस अप्रोच वॉज अ बिलीफ। इतनी अच्छी बात लिखी है ना, सी दिस इज द पंच लाइन। क्या लिखा है? Underlying this approach was a belief that Shantaram was selling far more than coffee. It was selling an experience. कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। उस कॉफी शॉप में, उस कैफे में बैठ के जब आप कॉफी पी रहे हैं, या व्हेन यू आर जस्ट enjoying with your friends, और आप वहां बैठे हैं उस गैदरिंग में, तो आप सिर्फ कॉफी नहीं पी रहे हैं, बल्कि आप सामने वाले उस कस्टमर को एक एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस के लिए वो बार बार आपके कॉफी शॉप में आएगा। न केवल खुद आएगा बल्कि दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। एंड दिस इज हाउ अ बिजनेस ग्रोज, राइट? द प्रीमियम प्राइस दैट द कंपनी चार्ज फॉर इट्स कॉफी रिफ्लेक्टेड दिस फैक्ट कि ये पैसा सिर्फ कॉफी का नहीं है। ये पैसा सिर्फ कॉफी का नहीं है, ये पैसा किसका है? उस एक्सपीरियंस का है जो आपको वहां बैठ के कॉफी पीने से मिल रहा है। अब ये हमें एक समझ में आ गया कि जब मिस्टर श्रीनिवास ने अपने कंपनी ओनर्स को कन्विंस किया होगा इस आइडिया के लिए, तो उनको ये पता था कि दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इंडीड इज द स्ट्रैटेजी विच इज गोइंग टू वर्क इन फेवर ऑफ द कंपनी। ये स्ट्रैटेजी है। तो जैसे ही, अब देखो, अब द मोमेंट हमें स्ट्रैटेजी ये वर्ड हमारे दिमाग में आया, हमें क्या समझ में आ गया कि ये जो पूरा केस स्टडी है, दिस इज समथिंग अबाउट द बिजनेस स्ट्रैटेजी वाला डिवीजन से ये क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, जहां पे हम एक बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रैटेजीज, स्वॉट एनालिसिस एंड सो फोर्थ की बात करते हैं। दिस इज हाउ द मैपिंग शुड गो। ये मैं आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी मैंने बताने की कोशिश की है, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो बहुत शॉर्ट वीडियोस थे, इसलिए आपको उतनी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया, या रियल टाइम इस तरह से मैंने ही शायद नहीं पढ़ा, तो हो सकता है आप उस अंडरस्टैंडिंग को लैक कर रहे हैं। बट मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं आपके एग्जाम के पहले कि मैं आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकूं, राइट? हेंस दिस वीडियो, ठीक? तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि Mr. Srinivas की strategy was to sell an experience and not just a coffee. So this means that there is some kind of strategy involved behind this entire thing. यहाँ तक समझ गया? From the outset, Santaraman also focused on providing superior customer service in stores. नाउ अगेन एक और एडिशन हुआ स्ट्रैटेजी में कि शांतारमन सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि मैं उनको एक एक्सपीरियंस सेल करूं, बल्कि वो एक्सपीरियंस उन्हें कैसे होना चाहिए, व्हेन दे आर गोइंग टू गेट अ सुपीरियर कस्टमर सर्विस इन स्टोर्स। अगर आप किसी जगह जाते हैं और वहां पे अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, यूजर एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम उस जगह में बार बार जाते हैं। वी रेफर द प्लेस टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल, क्योंकि हमको वहां पे उनकी हॉस्पिटैलिटी या किसी जगह पे ऐसी सर्विस, कहीं पे क्विक सर्विस है, क्विक डिलीवरी है, बहुत साफ सुथरी जगह है, तो वी फील गुड अबाउट द फैक्ट, ठीक? रीजनिंग दैट मोटिवेटेड एम्प्लॉइज प्रोवाइड द बेस्ट कस्टमर सर्विस। अब इसके पीछे रीजनिंग भी है। अगर किसी जगह के जो काम करने वाले लोग हैं, हमेशा समझना, ओनर खुद उतर के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर खुद उतर के ऑन फील्ड नहीं रहते। जब कोई कंपनी छोटी होती है तब रह भी सकते हैं, पर जब कंपनी ग्रो होती है तब ये पॉसिबल है क्या कि हमेशा जो ओनर है वो प्रेजेंट हो सकता है क्या? हर जगह ओमनी प्रेजेंट हो सकता है क्या? इस कंट्री में भी, दूसरी कंट्री में भी है, ऑल द टाइम ये नहीं हो सकता। तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन बन जाते हैं? आपके एम्प्लॉइज, आपके वर्कर्स आपके क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं। वो अगर मोटिवेटेड रहेंगे, अगर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं, तो ऑटोमेटिकली सेलिंग भी होगी, ऑटोमेटिकली कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ठीक है? Reasoning that motivated employees provide the best customer service, company executives developed employee hiring and training programs that were the best
in the restaurant industry. Today, all the company's employees are required to attend training classes that teach them not only how to make a good cup of coffee, सिर्फ अच्छी कॉफी बना देने से आप सेल्स इंश्योर नहीं कर सकते, rather but also the service oriented values of the company. ये हमें मिला हमारा एक और कीवर्ड. Again, this reflects the strategy of the company. This reflects the strategic intent behind the owners or behind the marketing manager or behind the thought process of the CEO of the company. यहाँ तक समझ में आया? Beyond this, company provided progressive compensation policies that gave even part-time employees stock option grants and medical benefits. Now see, क्या किया जा रहा है? एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन के बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ ताकि वो और ज्यादा मोटिवेटेड और वननेस का उनको एक फीलिंग आ सके विद दी कंपनी. जब कोई एम्प्लॉय कंपनी को अपना पार्ट समझता है, वो ये समझता है कि ये कंपनी उतनी ही मेरी है जितनी मेरे ओनर की है, तब एक्चुअल वर्क दिखता है. ठीक है? A very innovative approach in an industry where most employees are part-time, earn minimum wage and have no benefits. जहाँ पे आपके competitors ये कर रहे हैं कि वो अपने employees को उतना remunerate नहीं कर रहे हैं या bonuses नहीं दे रहे हैं या उनको और कोई extra benefits नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप part time काम करने वाले लोगों को employees stock option दे रहे हैं, medical benefits दे रहे हैं, जिससे वो और motivated हैं और आपके ही organization में best of best service देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है? Unlike many restaurant chains which expanded very rapidly through franchising arrangements, once they had established a basic formula that appeared to work, Santaraman believed that company needed to own its stores. ये है हमारा मेन क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है बिटवीन कंपनी ओन स्टोर्स और फ्रेंचाइजर्स के बीच में. अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल में अपने बिजनेस आउटलेट्स को दे देते हैं तो क्या होता है? वो एक सेट पैटर्न में ही काम करते रहते हैं, सेट पैटर्न में ही काम करते रहते हैं और एक लिमिट के बाद आपकी जो पकड़ है, जो सुपरवाइजरी रोल है, वो क्या हो जाता है? मिस आउट हो जाता है. जबकि अगर कंपनी ओन स्टोर रहता है तो कई जगहों पे आपका सुपरवाइजरी रोल रहता है, जिससे आप कंपनी को अंदर तक जाके इन डेप्थ जाके क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं. तो ये एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है इस एक लाइन में. यहां से हमारे आगे के क्वेश्चंस भी निकल के आएंगे. ठीक है? Although it has in 2017 a chain of coffee retail, close decade of astounding financial performance, ऐसा ये चलते जाते हैं. 30 years ago, the company was a single store in its local market selling premium roasted coffee. Today it is a global roaster. ऐसा है. अच्छा, यहाँ पे है फ्रॉम द आउटसेट ऐसा रीजनिंग दैट मोटिवेट कंपनी. Unlike many restaurant chains which expanded very rapidly through Santaraman believed that company needed to own its stores. Although it has experimented with franchising arrangements in some countries and some situations its home countries such as at airports, the company still preferred to own its stores wherever possible. Now this is the line जो सबसे ज्यादा हमारा अटेंशन ग्रैब कर रही है. मतलब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कंपनी की जो कंपनी इसलिए फॉलो कर रही है क्योंकि ये सेम स्ट्रैटेजी उसके कॉम्पिटिटर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं. कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिटर्स फ्रेंचाइज मॉडल में बिजनेस को दे रहे हैं. कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? फ्रेंचाइज मॉडल में बिजनेस को दे रहे हैं. ये कंपनी उनसे अलग क्या कर रही है? ये कंपनी उनसे अलग ये कर रही है कि इस कंपनी के द्वारा अपने जो स्टोर्स हैं उन्हें क्या किया जा रहा है? ओन किया जा रहा है. द कंपनी इज ओनिंग द स्टोर्स एंड नॉट ओनली बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू द फ्रेंचाइज मॉडल बिजनेसेस. ठीक? This formula met with spectacular success in country where company went from obscurity to one of the best known brands in the country in a decade. As it grew, company found that it was generating an enormous volume of repeat business. Repeat business मतलब जब बार बार आपके पास कस्टमर्स रिपीटेडली आते हैं, इन्हें रिटर्निंग कस्टमर्स भी कहा जाता है. या आपको बहुत बिजनेस देखे जाते हैं, वो एक बार आपके वहां आते हैं एंड टू हैव दैट एक्सपीरियंस दे आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन और उनके फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी आ रहे हैं. ठीक है? दे आर राइटिंग गुड रिव्यूज अबाउट यू. वो
जैसे अभी के टाइम्स में आप देखते होंगे इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया अदर हैंडल्स में या गूगल में लोगों का ये एक पेड बिजनेस भी हो गया है कि दे आर रिव्यूइंग दी रेस्टोरेंट्स, और वो उनके रिव्यूज के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अदर कस्टमर्स आर जस्ट गोइंग टू दीज प्लेसेस जस्ट टू हैव द सेम एक्सपीरियंस जो उस इन्फ्लुएंसर को हुआ है। ठीक है, तो चलो आते हैं मेन एक लाइन में। The company expanded rapidly to capture as many premium locations as possible before imitators. Imitate करना मतलब when you are copying someone is imitating someone. Astounding many observers, company would even sometimes locate stores on opposite corners of the same busy street so that it could capture traffic going different directions down the street. ये भी एक अच्छी strategy है, मतलब ये भी एक तरीका होता है जैसे businesses सोचते हैं कि एक स्ट्रीट में है तो एक अपोजिट स्ट्रीट में भी आपका एक आउटलेट है, ताकि दोनों डायरेक्शंस में जाने वाले लोगों को आप क्या कर सकें, कैप्चर कर सके, दोनों जगह डायरेक्शंस में जाने वाले कस्टमर्स को आप कैप्चर कर सकें। By 2005, with almost 700 stores across the country, Starbucks began exploring foreign opportunities. First stop was Japan, where Starbucks proved that the basic value proposition could be applied to a different cultural setting. Next, company embarked upon a rapid development strategy वर्ड पे रुक जाओ। अब हम तो ये अब इतना पढ़ने के बाद भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो देन देयर इज अ सीरियस फ्लॉ इन द एंटायर प्रोसेस, कुछ गलत सोच रहे हो आप। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजी इतना स्पेसिफिकली लिखने के बाद अब हमें ये पता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, आ जाओ अब कि कैसे आपको ये यूज करना है। अब देखो यहाँ से रिलेट करना चालू करेंगे हम। मेरी रेफरेंस गाइड आप सबके पास होगी, ऐसा मैं होप करती हूँ। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं जिनको नहीं पता है रेफरेंस गाइड के बारे में, गो एंड चेक आउट लेक्चर कार्ड, आपको वहां पे मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लेक्चर कार्ड का लिंक डाल दूंगी। तो द मोमेंट द वर्ड स्ट्रैटेजी केम, हम अपने फर्स्ट पन्ने में गए, इंडेक्स में गए MDCS के, वहां हमें दिख रहा है बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, पेज नंबर 3 पे क्या है, लिस्टेड है। अब हमें पूरी बुक MDCS की पलट के नहीं देखनी है, हम पहले क्या करेंगे, विल चेक आउट रेफरेंस गाइड। हमको रेफरेंस गाइड में दिख गया कि भाई पेज नंबर 3 ऑफ द रेफरेंस गाइड में हमको चले जाना है। ठीक है, चलो भाई रेफरेंस गाइड के पेज नंबर 3 में जाते हैं। अब रेफरेंस गाइड के पेज नंबर 3 में हम पहुंच गए हैं एंड वी कैन सी दैट बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ लिस्टेड है, पेज नंबर 3 ऑफ द रेफरेंस गाइड। ठीक, अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अब जो मेन हमें ये क्वेश्चंस डील करने हैं वो हमारा मेन राक्षस है जिसे हमें डिफीट करना है। ठीक है, व्हाट फंक्शनल स्ट्रैटेजीज हेल्प द कंपनी टू अचीव सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डील करेंगे। ठीक है, अभी हमको ये पता है कि हमारी रेफरेंस गाइड में, मतलब हमारी, आपकी, वो सिर्फ मेरी रेफरेंस गाइड नहीं है, वो आपकी भी उतनी रेफरेंस गाइड है। तो हमारी रेफरेंस गाइड में बिजनेस स्ट्रैटेजी वाला जो डिवीजन है वो कौन से पेज में दिया हुआ है, मैम पेज नंबर 3 में। ठीक है, हम पेज नंबर 3 में पहुंच गए। ये है रेफरेंस गाइड का पेज नंबर 3 सी। और यहां पे एक चीज और भी लिखी हुई है, पेज नंबर ऑफ ICSI मॉड्यूल where we'll find the information about the answers we will write for the questions of this case study. Now see how beautifully this entire PDF has been edited. मतलब इतनी मेहनत कोई मुझे करके दे देता ना, मैं तो चरण पकड़ लेती उस आदमी के कि वाह, सी द वर्क ऑफ द एडिटर, कितना पेन्स लगे हैं इस PDF को एडिट करने के लिए, वाह, commendable. Now see, now let's look at the first question asked in this case study. What functional strategies help the company to achieve superior financial performance? हमें अपना कीवर्ड मिल गया है। एज यू कैन सी, आधी तो ये PDF खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें हमारा फर्स्ट कीवर्ड क्या मिला था, मैं हमेशा कहती हूँ कीवर्ड ढूंढो, कीवर्ड ढूंढो। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है पेज नंबर 232 में of your MDCS study material which is given to you by ICSI. अब करना क्या है, फ्रॉम द रेफरेंस गाइड आप क्या करोगे, आप नेविगेट करोगे उस पन्ने में जो आपको MDCS के उस रिलेवेंट पेज नंबर तक पहुंचाता है। आप बैठ के ये ढूंढते रहोगे क्या हार्ड कॉपी में,
नहीं ढूंढोगे ना। सो उसके लिए आपको एक रेडीमेड रेफरेंस गाइड मिली हुई है जो मैंने बनाई है। उस रेफरेंस गाइड में आपने क्या देख लिया, हमने ये देखा था अभी अपने 5 मिनट पहले के इस वीडियो में कि पेज नंबर 3 में बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट है। ओके मैम, डन। उसके भी पेज नंबर 232 में अब यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है। आप गए फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज एंड इफेक्टिव टूल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हेडिंग एज इट इज हेडिंग दी हुई है आपके ICSI के स्टडी मटेरियल में। तो रैदर देन पूरे PDF पूरे हार्ड कॉपी में आप जाओ, इससे अच्छा आपको आपकी रेफरेंस गाइड में ये चीज यहाँ इजीली मिल गई है कि पेज नंबर 232 में ये लाइन दी हुई है, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज वाला पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पेज नंबर 232 में चले जाएंगे बुक के, और हमें वहां पे हमारा जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड आंसर हमें मिल जाएगा। अब ये तो आप मैम हमेशा कहते हो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर दिखेगा कैसा, ये भी देख लेते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। अब तक यही पॉइंट था ना कि आंसर लिखना कैसे है, मैम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आज मैंने वो आंसर्स भी आपके लिए रेडीमेड रेडी कर दिए। ठीक है, अब देखो ये जो आंसर है वो आपको दिख रहा होगा, 2 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, पार्ट 1 ऑफ द आंसर क्या कहता है? पार्ट 1 ऑफ द आंसर इज टेकन फ्रॉम ICSI मॉड्यूल पेज नंबर 232। क्या कहता है वो? इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अनअटेनेबल इकोनॉमिक सिचुएशन, मैनेजर्स आर इंक्रीजिंगली, अभी पढ़ के आए वहां पे कि एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर क्या सोचता है कि मैं अपनी कंपनी को कैसे उस विजन स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए हेल्प करूं, करेक्ट? तो the managers are increasingly seeking for strategies, approaches to accomplish, improve and sustain organizational performance and competitive advantage. Competitive advantage बोलो कैसे? अभी हमने देखा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या था, हमारे इमिटेटर्स कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इफ दे आर गोइंग फॉर द फ्रेंचाइज मॉडल विच इज नॉट वर्किंग इन आवर फेवर, तो हमने क्या किया था, अपने खुद के स्टोर्स, कंपनी ओन स्टोर्स के पीछे हमने मेहनत करी थी, करेक्ट? ये हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, strategy and its formulation play a vital role in the firm's management process. The strategy gives the direction that a business has in mind and which paves the way they want to achieve their goals. अब देखो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये हमने एज इट इज बुक से उठाया। ठीक है, इसके बाद ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपका जो ICSI का सजेस्टेड एक गाइडलाइन आई है, उससे ये पोर्शन मैंने यहाँ उठा के आपके लिए रख दिया है कि ICSI आपसे क्या उम्मीद करती है। तो ICSI जब ये कह रही है कि आपको ये लिखना है, तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ यही लिखना है, ये सजेस्टेड आंसर है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कहा उनने क्या कहा, सजेस्टेड है, भाई ऐसा कुछ तो भी आपको लिखना है। तो ये जो पोर्शन है वो मैंने ICSI के सजेस्टेड आंसर से आपके लिए कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेंशन्ड स्ट्रैटेजीज। देखो बार बार इसी चीज पे बैंक किया जा रहा है। नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि हमसे क्या पूछा गया है। ठीक, इंटरनल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ कंपनीज ओन प्रीमियम रोस्टेड कॉफी अलॉन्ग विद फ्रेशली ब्रूड एस्प्रेसो स्टाइल कॉफी। अभी पढ़ के आ रहे हैं, आंसर केस स्टडी से ही निकाला हुआ है। मतलब ICSI भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि थोड़ा सा अपना अगर अपन ब्रेन इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी लाइंस हम मॉड्यूल मतलब स्टडी मटेरियल से उठा के लिखेंगे और केस स्टडी के कुछ लाइंस को हम एज इट इज उठा के कॉपी करके लिखेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल सून। ऐसा करेंगे क्या कि जैसा कंपनी लॉ में लिखा है, कंपनी एक्ट में लिखा है, एज इट इज क्लाइंट को बता दिया तो क्लाइंट खुद ही पढ़ लेता। ऐसा करने वाले हैं क्या हम? नो, वी आर नॉट सपोज टू डू दिस। हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि जब हम आंसर्स लिख रहे हैं तो हमारे पास वो अप्रोच हो। ठीक है, और वो अप्रोच क्या है? प्रोफेशनल अप्रोच। तो हमने यहाँ पे केस स्टडी से भी उठा के कुछ लिखा, बस उसको एक अच्छे वर्ड्स के ग्रुप के साथ हमने उसे ब्लेंड कर दिया, स्टिच कर दिया। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी फोकस्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी बताओ क्या अभी पढ़ी थी हमने? ह्यूमन रिसोर्स की क्या स्ट्रैटेजी पढ़ी थी कि उनको बोनसेस दो, मेडिकल बेनिफिट्स दो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट्स दो, ये पढ़ा था। देखो क्या लिखा है, सर्विस ओरिएंटेड। हम उनको क्या करेंगे, हम उनका जो
ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू कैसे उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस देनी है हम ये बता सके. वी आर नॉट सपोज टू जस्ट सेल कॉफी ओवर देयर, वी आर सपोज टू सेल एन एंटायरली अ न्यू एक्सपीरियंस टू द कस्टमर. दिस इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी. एज इट इज लिखा हुआ था ऊपर, एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस कैसे हुए हैं कि आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करके ऐसा एक लाइन लिख दिया, कोलोन लगा दिया, एक अच्छी ड्राफ्टिंग. लुक एट द ड्राफ्टिंग. दिस इज हाउ योर आंसर्स शुड बी ड्राफ्टेड. प्रॉपरली नंबर्ड होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें क्यों कोई मार्क्स नहीं देगा, अब मुझे बताओ. कोई हमारे दुश्मन बैठे हैं वहां? नहीं बैठे हैं. और लोग पास हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं. मैम आप पास हुए? हाँ हुई. मैम क्या आपने यही स्टाइल फॉलो किया था? हाँ. मैम कितने साल हो गए आपको सीएस बने हुए? 11-12 साल हो गए. तो मैम अभी तक भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वही है? हाँ जी बिल्कुल वही है. मैम क्या डेली बेसिस में, डेली लाइफ में ऐसी ही ड्राफ्टिंग आप लोग करते हो? हाँ. दीज आर द प्री रिक्विसाइट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट है ये कि वेन एवर यू आर राइटिंग योर आंसर इट शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड, प्रॉपरली पैराग्राफ में डिवाइडेड हो, आपको जरूर नंबर मिलेगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले. क्या था? तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एक बार सम अप कर लेते हैं कि व्हाट फंक्शन स्ट्रैटेजीज हेल्प द कंपनी टू अचीव सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो 2 स्ट्रैटेजीज थी विच वर्कड इन देयर फेवर. एक तो इंटरनल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी. एक तो उनने इंटरनली ही कॉफी को क्या किया, अपनी जो ओरिजिनल जिस पे उनका ओनरशिप था उस कॉफी को प्रमोट किया, प्लस उनने अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया. ठीक है, ये एक पैराग्राफ हमने एक्स्ट्रा ऐड किया. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं. लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस केस स्टडी. आइडेंटिफाई द रिसोर्स कैपेबिलिटीज एंड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज. हमारे पास क्या है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमें आउट इन दी मार्केट, ये हमसे पूछा जा रहा है. मैम क्या ये इशारा स्वॉट की तरफ कर रहा है? एग्जैक्टली, वी आर रेफरिंग टू स्वॉट हियर, यही पूछा गया है. मैम क्या इसका कीवर्ड हमें आपकी रेफरेंस गाइड में मिल जाएगा? गो टू पेज नंबर 3 अगेन. अगर आपके हाथ में भी रेफरेंस गाइड है अब भी ओपन करो और चेक कर लो कि आपको वहां पे स्वॉट एनालिसिस का पार्ट दिखता है कि नहीं दिखता है. बिल्कुल दिखता है मैम. मैम अब हम क्या करें, हमने आपकी बात पहले क्यों नहीं सुनी? तो अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता. चलो, जब पास हो जाओगे, सीएस बन जाओगे, तो मिठाई का डब्बा जब लेके आओगे मेरे पास तब सजा दी जाएगी आपको इसके लिए. ठीक है, चलो. इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्वॉट एंड लिस्टेड इन द पेज नंबर 3 itself and the relevant page number of ICSI MDCS study mat is page number 227. Well, this time it took even lesser time to locate module page numbers, faster than Google Maps or what. चलो, so the first step. अच्छा, अब देखो, Part 1 of the answer is taken from ICSI module page number 27. ये पार्ट वहां से लिया गया है. अब ये पूरे पार्ट में आपके अवेलेबल टाइम के हिसाब से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आप इसमें से कितना पोर्शन रखना चाहते हैं. सजेस्टेड है कि आप अगर अपने आंसर को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं होती. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ गुड बिजनेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स अ कंपनी पोजेसेस रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. अभी हमने देखा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. Strengths come from the knowledge, abilities and resources available to the firm that gives it a comparative advantage in the industry. मतलब क्वेश्चन में as it is ये पूछा गया है, as it is पूछा गया है. MDCS के स्टडी मैट में ये आंसर है और इस आंसर तक पहुंचने का जरिया है ये रेफरेंस गाइड. द रेफरेंस गाइड इज एक्चुअली द वे टू रीच टू द आंसर. या तो आप पूरा चेट्टी देखी है आपने, वो रोबोट रहता है जो रजनीकांत चेट्टी, या तो चेट्टी की तरह पूरी बुक पढ़ लो और या तो फिर रेफरेंस गाइड की मदद लेके सही आंसर तक पहुंच जाओ. अब एक ही ऑप्शन है, देख लो क्या बनते हो, चेट्टी बनोगे कि रेफरेंस गाइड यूज करोगे. ठीक है, द सेकेंड स्टेप इंक्लूड्स अ नीड टू आइडेंटिफाइंग द वनरेबिलिटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉम्पिटिटर्स कुड एक्सप्लॉइट. ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि देयर आर पॉसिबल इमिटेटर्स आउट इन द मार्केट. वो हमें इमिटेट कर सकते हैं, हमसे कुछ बेहतर भी लेके आ सकते हैं. देन वी नीड टू थिंक ऐसी क्या वीकनेस है जो हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में है, जो जिसके कारण हम फेल हो सकते हैं.
ये भी हमें देखना होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास ऐसा क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ठीक, weaknesses or any limitations or deficiency in the firm's resources and competencies that could hinder its performance। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमारे पास उतना टाइम वहां पे नहीं मिल रहा है इसको लिखने को, तो कोई बात नहीं, इस वाले लाइन को मत लिखो। अगर ऐसा लग रहा है, लिखने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर ऐसा लगता है कि टाइम का क्रंच है तो उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। देन वी हैव इन द गिवन केस स्टडी द डिसीजन। हाँ, अब देखो, इन द गिवन केस स्टडी, ये एक ऐसी लाइन है जिसको मैंने ऐड किया है। In the given case study, the decision was much concerned about identifying the resources, capabilities and distinctive competencies of company। सेम बात लिखी है, जो पूछा गया है वो सेम बात लिखी है, पर this is how we are relating the first paragraph of the answer with the second paragraph। second part से इस तरह से जोड़ा जा रहा है आंसर को। ऐसे ही एक प्रोफेशनल से उम्मीद की जाती है कि कैसे आंसर्स उसको लिखने चाहिए। ठीक है, the resources and capabilities for creating Starbucks as one of the 10 most global brands in the ambience in which it serves, it could be regarded as Starbucks sell experience beside Italian coffee। अब देखो, यही बात अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ये अच्छा, सेम चीज जिसपे हमने तब बैंक किया था इतना कि वो सिर्फ एक कॉफी नहीं बेच रहे हैं बल्कि एक एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं, सेम बात का हमने डिस्कशन किया था। देखो ICSI आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है आंसर का, वो मैंने कहां से लिया है, जो सजेस्टेड आंसर ICSI ने दिए हैं उससे लिया है। ये पोर्शन मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, पर व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द केस स्टडी ये हमने आइडेंटिफाई किया था कि नहीं किया था? अब बताओ, किया था ना आइडेंटिफाई। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गो विद योर आंसर। ये ऐसे फ्लो बनता है। जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आपने क्या कर लिया था, इन चीजों को मैप कर लिया था, उसी समय आपने इनको मैप कर लिया था। ठीक है, Employees are constantly trained, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। A noteworthy approach of the company is offering employees with compensation policies that give part-time employees stock option grants and ऐसा ऐसा ऐसा। सेम चीज ICSI आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम केस स्टडी में पढ़ के भी आए, जो आपको पता भी है, बट आप उसके बीच में रिलेटिविटी नहीं बैठा पा रहे। ठीक है, Let's look at the third question asked in this case study. How do companies, अच्छा अब हमने ये भी पढ़ लिया कि कंपनी के क्या रिसोर्सेज थे, क्या कैपेबिलिटीज थी, क्या डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज थी। अब हमको ये देखना है कि कैसे इट वर्कड इन फेवर ऑफ स्टारबक्स, कैसे फेवर में कैसे काम कैसे किया। चलो भाई, हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि भाई किसी स्टूडेंट के पास ब्रेन्स है, टाइम है, सब कुछ है, फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो पास नहीं हो रहा। कैसे वो अपने इन सारे स्ट्रेंथ्स को, अपॉर्चुनिटीज को अपने फेवर में काम करा सकता है, ये भी तो उतना ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर से आंसर की ओर। हमको डर तो लगता ही नहीं है किसी चीज से। सो वी फाउंड आवर कीवर्ड्स। इफ अ कंपनी वांट्स टू अचीव इट्स गोल्स, इट नीड्स सम सेट काइंड ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड अ स्ट्रैटेजी। सो कीवर्ड्स टू लुक आउट फॉर आर एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी। हमारे पास स्ट्रैटेजी है, हमारे पास सब कुछ है, पर उस स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे क्या? देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर सम विजन स्टेटमेंट्स जो कंपनी रीच करना चाहती है, जहां तक कंपनी पहुंचना चाहती है। ठीक है, could be something which should look for in MDCS reference guide page number 4 onwards। पेज नंबर 4 में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, किस तरह से आप एक मार्केट में अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप सुपीरियर फाइनेंशियल गेन्स की ओर पहुंच सकते हैं। चलो आ जाते हैं। पार्ट 1 ऑफ द आंसर इज स्ट्रक्चर्ड यूजिंग सजेस्टेड आंसर्स बाय ICSI। Starbucks resources, capabilities and distinctive competencies translate into superior financial performance by providing them, सबसे पहला, great value propositions as a forum for gathering premium roasted coffee, good market segmentation, placing the retail chains at well-known locations. Even, for instance, the company would even sometimes locate stores on opposite corners of the same busy street. Now look at this. क्या हमने अभी ये नहीं पढ़ा? सच्ची बताओ, माता रानी की कसम, अभी हमने नहीं पढ़ा। जस्ट नाउ वी हैव बैंक्ड अपॉन द सेम फैक्ट। सेम फैक्ट्स पढ़ रहे थे कि एक बिजी स्ट्रीट में, एक बिजी रोड में इधर भी स्टोर है, इधर भी स्टोर है, दोनों जगह स्टोर है। और स्टारबक्स ने क्या किया, इसी अपॉर्चुनिटी को टैप करने की कोशिश करी कि अगर कोई एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो हो सकता है उसके पास इतना टाइम ना हो या इतनी अपॉर्चुनिटी ना हो कि बेचारा वो घूम के वापस आए उस साइड वाले रोड में से कॉफी लेने के लिए या साइड्स लेने के लिए।
तो वो क्या कर रहा है, उनने दोनों साइड ऑफ द बिजी रोड में अपने आउटलेट्स डाल दिए। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द आंसर टेकन फ्रॉम द आईसीएसआई मॉड्यूल पेज नंबर 233, जो कि आपका इसका भी पार्ट है, मेन केस स्टडी का भी पार्ट है। ये पार्ट आप चाहो तो लिखो, चाहो तो आप इसे कट शॉर्ट भी कर सकते हो। मैम अगर कट शॉर्ट करना था तो फिर आपने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया? ये इसलिए इंक्लूड किया है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्टेटमेंट को किसी फैक्ट से बैकअप करना चाहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पैराग्राफ है, ये आपके स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए है कि ये सब करने के बाद फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ, पढ़ा ना अभी हमने कि कैसे स्टारबक्स अचीव्ड सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या क्या हुए, तो वो ये हुए। और लास्ट में एक लाइन जो मैंने अपने ओपिनियन से, अपने एंड से इंक्लूड की है, वो है दिस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ स्टारबक्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेडरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग डाइवर्सिफिकेशन, आपको डाइवर्सिफिकेशन दिया एक, एंड हेल्पिंग अ कॉफी चेन टू बिकम अ जॉनरा इन इटसेल्फ। स्टारबक्स आज की तारीख में क्या हो चुकी है, एक जॉनरा हो चुकी है। ठीक है, मतलब एक तरफ होता है नॉर्मल एक कॉफी और एक तरफ होती है स्टारबक्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनने कुछ ऐसे फेडरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के पीछे काम किया। अभी हमने पढ़ा था, क्या था वो? फ्रेंचाइज की तरह न करके कंपनी के अपने ओन स्टोर्स हो। द मोमेंट वी आर राइटिंग दिस, हम अपने अगले क्वेश्चन की आंसर की ओर भी बढ़ जाते हैं। सी हाउ आईसीएसआई इज आस्किंग यू क्वेश्चंस। ये भी देखो कि क्वेश्चंस का फ्लो किस तरह से चल रहा है, एक के बाद एक क्वेश्चंस एक दूसरे से लाइन जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, अच्छा देखो एक और चीज यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है, उस नोट पे ध्यान देना। नोट दैट इन पार्ट 3 ऑफ आंसर वी एडेड सम मोर इंफॉर्मेशन दैट शोज that as a student we also have our own standpoint on a given case study. This impresses paper checkers that you are not just a copy paste machine but have your own understanding of the topic as well. ये impress करता है पेपर चेकर को कि एक स्टूडेंट सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, let's look at the last question asked this in case study. What do you think company prefers to own its own stores wherever possible? अगेन ये कंपनी का फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का पार्ट है कि किस तरह से कंपनी अपने ओन स्टोर्स को रख के ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस फाइनेंशियली परफॉर्म कर सकती है rather than by going through the franchise model. अगेन अब ये आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से आपको आंसर्स के बीच में नेविगेट करना है, किस तरह से आपको कीवर्ड ढूंढना है। वी हैव had enough conversations, enough discussions about this. तो सीधे चलते हैं हम अपनी आंसर की ओर। आंसर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहां से लिया गया है? पेज नंबर 232 से, आईसीएसआई से हमने उठाया है। In a highly competitive business environment and unattainable economic situations, managers are increasingly seeking for strategies, approaches to accomplish, improve, and sustain organizational performance and communication. Strategy and its formulation play a vital role in the firm's management process. The strategy used in the given case study, Santaraman believed to ensure quality. Now see, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? This everything is not given in the ICSI study mat. कुछ words आपको खुद के भी, कुछ sentences आपको खुद के भी यूज करने हैं, right? You are supposed to do this as a professional. Think about the situation. अगर मेरे सामने ऐसी situation आती and I am a company secretary, मैंने कैसे react किया होता, कैसे मैंने अपनी case study को present किया होता। ठीक, कि Santaraman believed to ensure quality, to own its stores in various regions, to have a control on vertical supply chain. अब इससे क्या हो रहा है कि जो भी वर्टिकल सप्लाई चेन जब किसी बिजनेस की है तो उसका पूरा पूरा कंट्रोल है, इन डेप्थ इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोनॉमी है सामने वाले दूसरे आउटलेट्स और दूसरे स्टोर्स के ऊपर भी। मतलब जो फ्रेंचाइज अगर होगा तो उसकी खुद की ऑटोनॉमी हो सकती है, पर यहाँ पे इसी पॉसिबिलिटी को क्या किया गया, रूल आउट कर दिया गया बाय ओनिंग द स्टोर्स। ठीक है, Part 2 of the answer structured using suggested answers by ICSI.
The company believes that by owning and running the store itself, it can have control on the quality directly, as quality control would be possible only under direct control mechanism. Moreover, there will not be any profit sharing. Even if one franchise would perform badly, then it could exert a negative impact on the brand value of Starbucks. Starbucks provides premium quality to customers, which is difficult to learn and explain to clients, requiring a well-trained team. और वही सब बातें उनने लिखी हैं कि किस तरह से Starbucks का एक यूनिक proposition है to own its stores. Part 3 of the answer, where we express our own conclusions on the questions. अब ये conclusion मैंने आपके लिए ready किया है. Owning the stores helped the company negate the loss incurred by the newer branches, as there are few stockholders to take away financial inflows. By having complete control on vertical supply chain, Starbucks ensured that there is least wastage of perishable resources, accounting for the most amount of losses in FMCG category. ठीक है, तो ऐसे टाइप के conclusions आप अपने तरफ से ऐड करिए. अब ऐसा नहीं है कि जैसा दे दिया गया है वही आपको ऐड करना है कि नहीं मैम ने ये वाला लिखा हम यही करेंगे, ऐसा नहीं है. आप अपने खुद से सोचिए, वहां पे जब आप बैठे हैं मेन पेपर में, तो आप कैसे इसके कंक्लूजन्स के बारे में सोचेंगे, कैसे आपको लगता है कि एक केस स्टडी में कैसे आप उस सिचुएशन तक पहुंचे जहां आपने स्टार्ट किया था एक पॉइंट से एंड यू आर रीचिंग टू दी कंक्लूडिंग पॉइंट. ठीक है. Again, in this answer, we have added one whole paragraph in the end where we conclude the whole answer in our own words. We brought up a major problem related to the perishable resources of an FMCG company and how control over vertical supply chain minimize that problem. इतना पेपर तो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, ये तो वैसे भी आपसे एक्सपेक्टेड है. ठीक है, राइट. तो इस तरह से आपने 40 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं अपने इन 10 मार्क के क्वेश्चन से, जो कि एक इतनी बढ़िया सी केस स्टडी से पूछे गए थे. ठीक है, आप चाहें तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं रेफरेंस गाइड मेरी मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज वाली ओपन बुक के लिए, और अदर 4 के लिए भी अवेलेबल है लेक्चर कार्ड पे. मेरा सजेशन रहेगा कि डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, ऐसा मत करना. अभी भी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग मैम 1-2 दिन में ऑर्डर कर देंगे, मैम 1-2 दिन में ऑर्डर कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे. डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर ऑर्डर करना ही है तो डू इट राइट अवे. और ये सोच लिया है कि नहीं भाई ये रेफरेंस गाइड लेके इस बार हम नहीं जाएंगे और हमें अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर करने हैं, तो भी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि रेफरेंस गाइड आपको हेल्प तो करती है. आई नो दिस फॉर फैक्ट कि इस रेफरेंस गाइड से आप बहुत जल्दी आंसर्स तक नेविगेट करके पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिकेबल लिंक्स दिए हुए हैं. आप सीधे अगर लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधे आप पहुंच जाएंगे वीडियो तक भी. और आप अगर हमें कांटेक्ट करना चाहें तो ऐसा मैंने बहुत बार बताया है, वैसे तो हमारा नंबर है 7773899997. और एडिटर ने एक बहुत सुंदर सी फोटो लगा रखी है, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को मेरी ये फोटो. थैंक यू, ये बड़ी अच्छी फोटो है. थैंक यू इतनी अच्छी एडिटिंग करने के लिए. और आई होप इस एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में जो मैं ट्राई करना चाहती थी आपको एक्सप्लेन करना कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए, मैंने सक्सेसफुली वो चीज़ आपके लिए करी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. सिर्फ ऐसा नहीं है हाँ कि वो मार्जिनल लिसनर्स नहीं होते हैं कि सुना और फट से भाग गए, शेयर भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, लाइक भी नहीं किया. ऐसा नहीं करना, ऐसे अच्छी बात नहीं होती है. अगर आपको कुछ चीज़ आपके काम आई है तो सपोर्ट भी करो, राइट. अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा हमारे स्टूडेंट्स हमें प्यार करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियो के लिए वेट करते हैं, तो वी गेट दी मोटिवेशन. वैसे ही हमारा दिन बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, पर उसमें से भी वी ट्राई टू फाइंड आउट सम टाइम कि हम ये सारी चीज़ें आपके लिए बना सकें. ठीक है, एंड दिस PDF इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ये PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मतलब इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. जाके PDF को ज़रूर डाउनलोड करो. ठीक है, और प्लीज़ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अपने टेलीग्राम में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, इंस्टाग्राम में स्टोरी में लगाओ. इफ़ यू वांट यू कैन टैग मी एज वेल, यू कैन टैग लेक्चर कार्ट एज वेल. ठीक है, मैं इंस्टाग्राम आईडी मेरा भी और लेक्चर कार्ट का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगी. हमें भी टैग करिए, हमें भी खुशी मिलती है. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर से डरो मत. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ये PDF आपके लिए यूजफुल है
तो मुझे बताना, मैं बाकी इलेक्टिव पेपर्स के लिए भी आपके लिए एक एक ऐसा क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करके और उसका एक सजेस्टेड आंसर मेरी तरफ से आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। बहुत जल्दी ही वीडियो लेक्चर्स भी मेरे आने वाले हैं ऑन इलेक्टिव पेपर्स एंड MDCS। तो भगवान से ये प्रे करो कि मुझे खूब सारा टाइम मिल जाए ताकि मैं ये लेक्चर्स आपके सामने ला सकूं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।